Hey guys, welcome back to my channel Himani Physics Tutorials. We are back with another video of class 11th physics. This video is based on the complete course as I have mentioned earlier about the syllabus part of this slide. So in this slide we are going to learn about class 11th physics chapter 1. So chapter 1 is basically about the introduction part of physics, that what is physics, what are the basic forces in nature, what are the conservation laws in the nature, and somehow that about forces, what are forces, or basically application of physics in the field of this universe, in any field, in any space. So let's get started. So first of all, we are going to study about the basics of physics. This is the very important thing which we must know about. What are basics of physics? So first of all, in this section, we are going to know about what is physics. So what is physics? Okay. So what is physics? Physics आपके according क्या है? Like जैसे आप लोग भी खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि फिजिक्स क्या है, तो सिंपली इसका आंसर होगा कि एवरीथिंग दैट वी सी अराउंड अस and feel and observe is a phenomena which comes under the study of physics. Everything that whatever are in our surrounding is present, that everything is physics, that we can observe physically, we can see physically, that is physics. Okay. So in this section we are going to study basics of physics. Under it we are studying what is physics, and second one is basic forces in nature, and third one is conservation law. This will be the introduction part of our physics section. Okay, so next will be our what is physics. So you can see that everything we see around us is physics, that any phenomena occurring under this rocket is physics, this wind cups physics, this magnetic field is physics. Everything around us or everything we observe around us is nothing but physics. So now what are basic forces in nature? So first of all, we all must know about the fundamental forces in nature. There are four fundamental forces in nature. First one is our gravitational force, second one is our weak force, third one is our strong force, and fourth one is our electromagnetism. Okay, you can write them up and down. There is no sequence in this section. You can see the first one is our gravitational force, the second one is our weak force, third one is electromagnetism, and fourth one is strong force. So from very beginning we all know that what is a gravitational force. हम अपने बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि gravitational force क्या है और इसकी डिस्कवरी किसने की थी. So we all know that Sir Isaac Newton was a discoverer of this gravitational force, and there is a famous example, that phenomena that happened with him was that he was sitting under an apple tree. When an apple fall down, he observed that, he noticed that apple falls down, not goes upward. So why this is so? So this is a main pinpoint when the starting of this gravitational force or gravitation came into account. So from his idea, there is a great discovery of gravitational force. So that's why we can say that gravitational force is discovered by Sir Isaac Newton. So what happened in that? See, okay, first of all, I will tell you what are fundamental forces in nature. Next slide is about fundamental forces in nature. So fundamental forces are also known as interactional forces, fundamental interactions. Fundamental होते क्या है? Fundamentals सबसे पहली चीज़ होती है fundamental, किसी भी atom के अंदर होते हैं electrons, protons, neutrons, ये सब मिलाकर बनाते हैं हमारे atoms. So इनके बीच में जो interactions होती हैं वो हमारी fundamental interactions या fundamental force कहलाती हैं. So in physics there are basically four fundamental forces. First one is gravitational force, second one is electromagnetic force, third one is strong, and fourth one is weak. These are the four type of forces that are fundamental in nature, that governs how object or particles interact with each other and how certain particle decays, और कैसे decay होते हैं वो particles, ये हम इनके अंदर पढ़ते हैं. So all known forces of nature can be traced to these fundamental forces. इन्हीं fundamental forces के behalf पर ही बाकी और forces को हम trace कर सकते हैं, I mean find out कर सकते हैं. So the fundamental forces are characterized on the basis of four criteria. First one is कि जो particle force experience कर रहा है, either attractive or repulsive, okay, or none of them. So वो पहला criteria होता है इन interactions को जानने के लिए कि उनके अंदर
पार्टिकल्स के अंदर कैसा फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एंड वी कैन नो ऑल दीज थिंग्स अबाउट द एक्सपेरिमेंट्स फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स. And the relative strength of the force, how much tightly or how much loosely they are bonded with each other. This is the strength of the relative force between the fundamental particles, or we can say the interacting particles. And next one is the nature of the particle. Either they are attractive or repulsive. This is the nature of that particle. That the particles, if the particles are of same nature, that is a positive positive, they will repel each other, or negative negative, they will repel each other. And if you talk about another side, that one is positive or one is negative, then they will attract each other. So this is the what nature of particle. ठीक है, कि वो कैसे forces को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो हम कह सकते हैं वो हमारे फंडामेंटल इंटरेक्शंस होती हैं. सो फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू. So in that we know that Sir Isaac Newton was sitting under a tree and a apple falls down. Then the sudden idea strike in his mind, how and why this apple just fall down, not goes upward from this tree. So this is the universal law, we can say that, because this law is valid in the universe also. How the sun and the planets are attracted with each other. ओके, सो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. और ये जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. दैट इज़ वी कैन से दैट इनफाइनाइट होती है, क्योंकि अगर ज़्यादा नहीं होती तो हम लोग जो वी द पीपल लिविंग इन द अर्थ आर अट्रैक्टेड सम हाउ by the other planets also. We can say that we are attracted towards the earth. This is the main example of this gravitational force, that this is very 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 large force in nature. This is not distance dependent. So Newton's law of universal gravitation is used to explain gravitational force. This law states that every massive particle, that is जो भी भारी भरकम ऑब्जेक्ट होगा यूनिवर्स में, वो अदर भारी भरकम या जो छोटा मोटा पार्टिकल है उसको अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स, ऐसे फोर्स से जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा. यू कैन से दैट. सो दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी मैसिव पार्टिकल इन द यूनिवर्स. ओके, थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ कि मान लीजिए कोई हमारा पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है. ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है हमारी आर, स्मॉल आर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है. तो ये कह रहा है कि मान लीजिए इसका मास कैपिटल एम है और इसका मास स्मॉल एम है. ओके, सो ये लॉ अगर हम इसे मैथमेटिकली देखें तो ये कहता है कि जो फोर्स होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. वो हमारी प्रोडक्ट ऑफ दीज मासेस, दैट इज m1 इंटू एम इनके क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ये हमारे किसके, इन दोनों की जो डिस्टेंस है उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. और डिस्टेंस हमारे इन दोनों के बीच की है r, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर. ओके, दिस इज 2. तो ये हमारा ग्रेविटेशन लॉ. अगर हम इन दोनों को कंबाइनली अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर. अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर को यहाँ से हटाएंगे, ठीक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी फैक्टर अगर हटेगा तो हमारा क्या आएगा, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा. और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम बोलते हैं कैपिटल G. दैट इज ये होता है कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन. इसे हम ग्रेविटेशन कांस्टेंट भी कहते हैं. ये हो गया हमारा m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा इसका पूरा डेरिवेशन मैंने आपके सामने करके दिखा दिया है. और इन अवर फर्दर क्लासेस ये आपका सेकंड में आएगा, शायद सेकंड एग्जाम जब होंगे आपके, उसमें जो पहला चैप्टर है वो हमारा ग्रेविटेशनल ही चैप्टर है. पूरा एक चैप्टर है इसके बारे में जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में. सो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ में आया होगा. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा वीक फोर्सेज. सी, वीक फोर्सेज नाम से पता चल रहा है कि ये फोर्सेज आपस में क्या होती हैं, वीक होती हैं, ये एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं करती हैं.
सो जो वीक फोर्सेस होती हैं वो हमारी चारों में से, चार फंडामेंटल फोर्सेस में से एक फंडामेंटल फोर्स होती है जो हमारे मैटर के अंदर होती है, जो हमारा मैटर यूनिवर्स में प्रेजेंट होता है, यू कैन से दैट ये उनके अंदर प्रेजेंट होती है। और इसी की वजह से ये जो वीक फोर्सेस होती है, इन्हीं की वजह से जो हमारे मैटर्स हैं वो एक दूसरे से अलग होते हैं, दैट इज ये डिकेइंग में हेल्प करती है। जो हमारी वीक फोर्सेस होती है दैट हेल्प्स इन द डिकेइंग पार्ट। सो we can say that the weak forces in is one of the four fundamental forces in nature, all right, and that governs all matter in the universe, while the other forces hold things together। हालांकि जो अदर फोर्सेस होती हैं वो एक दूसरे को टुगेदर होल्ड करती हैं, बाकी जो तीन होती हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस भी एक दूसरे को होल्ड करके रखती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो फोर्सेस होती हैं वो भी एक दूसरे को होल्ड करके रखती हैं, और जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो भी एक दूसरे को होल्ड करते हैं। बट ये जो वीक फोर्सेस होती हैं, दीज फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिकेइंग पार्ट, की एक हमारे मैटर में से कोई चीज़ अलग हो रही है या डिके हो रही है, वो हमारी वीक फोर्सेस पे डिपेंड करती है, तो इसलिए ये बाकी तीनों से थोड़ी अलग है। द वीक फोर्सेस प्लेज अ ग्रेटर रोल इन थिंग्स फॉलिंग अपार्ट, थिंग्स के दूर जाने के लिए ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती हैं, या फिर थिंग्स के डिके होने के लिए करती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सी, एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड वर्ड है, और मैग्नेटिज्म मीन्स मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वर्ड है। आई होप कि अपने 10th में आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर भी आपने पढ़ा होगा। सो इसमें क्या होता है हमारा, जब हम देखते हैं कि हमारी जो करंट कैरिंग वायर, जैसे ये कोई वायर है, ठीक है, ये वायर है हमारी, इसमें हमने किसी बैटरी से इसे हमने कनेक्ट कर दिया, दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू द नेगेटिव एंड। तो इस वाले पर अगर हमने इसका बैटरी ऑन किया तो हमारी यहाँ से करंट फ्लो होनी स्टार्ट हो जाएगी, इस वायर के अंदर से करंट जाके पूरा सर्किट बन जाएगा और इस तरीके से करंट फ्लो होगी। जब भी किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर हम देखते हैं तो उसके आसपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया, और ये क्या है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है। मैग्नेटिक फील्ड को हम इस तरीके से दिखाते हैं, तो यहाँ पे दो पोल जनरेट हो गए, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल जनरेट हो गया है, और इस वाले पार्ट पे हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, इस कॉइल के अंदर से डेवलप हो गया है, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल ऑलवेज बिहेव्स एज अ मैग्नेट। हालांकि ये एक परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये कुछ जब तक इस पर करंट फ्लो रहेगी, जब तक इसमें करंट रहेगी, तब तक हमारा क्या होगा, ये एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करेगा। सो इसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से मिलकर बना हुआ है, इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन्वॉल्विंग द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज, दैट इज जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म प्रेजेंट होता है, उससे जो फोर्सेज हमारी बनती हैं वो फोर्सेज के बीच में काम करता है। A type of physical interaction that occurs between electrically charged particles, और ये हमारा जो अट्रैक्शन होती है इस सर्किट में वो सिर्फ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स को ही अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो और जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पार्टिकल्स चार्ज होते हैं उन्हीं चार्जेस को ये अट्रैक्ट करता है, ठीक है, एट हाई एनर्जी, और इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी चाहिए होती है, और हाई एनर्जी में जो वीक फोर्सेज होते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आर यूनिफाइड एज अ सिंगल इलेक्ट्रो वीक फोर्सेज। अगर हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी हाई कर दें, दैट इज़ कि अगर हम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें तो हमारा क्या होगा, जो वीक फोर्सेज होंगी जो हमने इससे पहले पढ़ी थी और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज अब हैं, ये दोनों सेम बिहेव करती हैं, इनका बिहेवियर सेम होता है, और उस टाइम पे इन फोर्सेज को एक ही दो अलग अलग फोर्सेज ना कह के हम एक सिंगल फोर्स कहते हैं, और वो होती है हमारी इलेक्ट्रो वीक फोर्सेज, है ना। इस वाले से आया हमारा इलेक्ट्रो और वीक वाले से आया वीक, तो इलेक्ट्रो वीक फोर्सेज ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्सेज हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट वन ऑन दिस इज अवर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज। ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं ये आजकल हमारे होने वाले साइंटिफिक जो भी हमारी रिसर्चेज होती हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है। किस ब्रांच में, हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स के ब्रांच में, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियस के अंदर की बात करते हैं। जो हमारा एटम होता है जिसके चारों तरफ शेल्स होती हैं, जिसके KL-MN शेल्स आपने पढ़ा होगा आपके 10th में, तो उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं, उनके जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अकॉर्डिंग। तो जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी हमारे क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम बोलते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। ये देखिए ये जो क्या है हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनके ऑर्बिट में इनके क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं।
तो ये जो हमारी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं, ये हमारे न्यूक्लियर फोर्सेस के अंदर होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर होती हैं बेसिकली। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में होती हैं, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, और ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। लाइक कि कुछ पर्टिकुलर रेंज, छोटी सी रेंज के अंदर ही ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। The strong force, a fundamental interaction of nature that acts between subatomic particles of matter. Subatomic particles are our neutron and proton. The strong force binds quark together in clusters, और इन्हें हम quarks बोलते हैं, और ये quarks को clusters में, मतलब कि झुंड में क्या करती हैं, bind करती हैं to make more familiar subatomic particles such as proton and neutron. Okay, इनसे हमारे जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइटली बाइंड रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाइंड रहते हैं, इसलिए इसे हम लोग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बोलते हैं। So this was about the fundamental forces in nature. I hope कि आपको समझ में आया होगा. Now we are going to the next one, that is our conservation law. See, in physics the conservation plays a very crucial role in the field of physics. अगर conservation laws नहीं होंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल भी हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, कोई भी ऐसे फिनोमेना हम अपने सराउंडिंग में फील नहीं कर सकते हैं। कंजर्वेशन लॉज बेसिकली हमारा होता है कि कंजर्वेशन लॉ इज़ अ हाइपोथेसिस, ये कोई एक रियल थ्योरी नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर ही इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। These can be verified via experiments. According to the general law of conservation of energy, the energy remain constant over time and convert from one to another. एक से अनदर में ही कन्वर्ट हो सकती है ये। और हमारे क्या होते हैं, जैसे हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी होती है, कोई भी एनर्जी होगी, वो जो एनर्जी होती है, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ओके, अगर एक बॉडी एनर्जी लूज करेगी तो दूसरी बॉडी एनर्जी गेन करेगी। एज एन एग्जाम्पल आप देखेंगे कि जब बहुत ज़्यादा हमारे, हम कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर हम अपने हाथ ही रब कर रहे हैं, ठीक है, हाथ रब के तो हमारे हाथों में हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, और उस हीट को हम ऐसे किसी भी दीवार पे टच कर लें या कुछ कर लें तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे तो हमारा हाथ जो है वो ठंडा होने लगेगा, और जो दीवार है वो हल्की सी हमें गर्म फील होगी, क्योंकि हमारी एनर्जी, हाथ की एनर्जी उस दीवार पर चली गई है। सी, यहाँ पे एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई, बस वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। दिस इज़ द कंजर्वेशन, इसे ही हम कंजर्वेशन कहते हैं, मतलब कि बचना, कंजर्व होना। तो हमारी जो एनर्जी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। सो कंजर्वेशन लॉज हमारे बेसिकली होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो सकती है, कंजर्वेशन ऑफ मास हो सकता है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन हो सकता है, और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो सकता है। सो दिस वॉज, ये जो वर्ड्स आए नो कि आप लोगों के लिए थोड़ा टफ पढ़ ले होंगे क्योंकि आपने ये पहले सुने नहीं हैं, बट 11th की फिजिक्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है कह सकते हैं अगर आप ध्यान नहीं देंगे। तो अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ में ऐसे ही छोटा छोटा स्टार्टिंग से, ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, वी हैव नॉट जम्प्ड टू द लेक्चर्स, दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। इन द लेक्चर 1 यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस एंड मेजरमेंट पार्ट, कि हम मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, कि हम स्टार्स के डिस्टेंस को कैसे देखते हैं, हम बाकी चीज़ें कैसे मेजर करते हैं, मेजरमेंट वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। अगर इसमें कहीं पे आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देखकर अपनी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर कर सकें। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, बाय।